So here we are going to continue with this. Rewrite the following sentences in the past perfect continuous tense using the same time phrase given in the brackets. Bad weather was disturbing many important flights. Now we have to change this sentence into the past perfect continuous. Means we have to use had been plus we की first form ing. Okay. The bad weather was disturbing. तो हम कैसे लिखेंगे? Bad weather had been disturbing many important flights for over a week. Okay. Write down. Come on. Bad weather was disturbing हो जाएगा. Had been disturbing. Had been disturbing आ गया ना. Had been plus verb की first form ing. Had been disturbing many important flights. उसके बाद हमने ये फ्रेज लगा देना, टाइम फ्रेज, फॉर ओवर अ वीक. क्लियर टू यू? Second sentence. Trumpets were blaring loud, jarring music for 2 hours. Now, verb blaring को हमने कैसे चेंज करना है? Verb blaring की जगह आ जाएगा had been blaring loud. Clear? Write down. Come on, write with me. Trumpets had been blaring loud, jarring music for 2 hours. Geeta was working as a babysitter ever since she came to the capital. Now we have to add this at the end. तो was working हमारा कैसे चेंज हो जाएगा? Had been working. Okay? Geeta had been working as a babysitter ever since she came to the capital. Capital means Delhi. Here may be Delhi or any capital. A retired judge of the Supreme Court was inquiring into the charges since 2001. Was inquiring will change into had been inquiring. The retired judge of the Supreme Court had been inquiring into charges since this. लिखो. A retired, come on, write with me, all of you. Retired judge of the Supreme Court had been. You have to learn the rules कि past perfect में क्या यूज होता है. past perfect में had प्लस verb की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, सेकेंड फॉर्म सॉरी. और अगर हम past continuous, ये देखिए आपको सिर्फ अपने रूल्स लर्न करके रखने हैं. वर्ब past perfect में had प्लस verb की थर्ड फॉर्म. कंटिन्यूस में वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी. कंटिन्यूस में आपने इतना ध्यान जरूर रखना कि अगर पास्ट है तो वॉज वर, वी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर हो, उसमें आपने आईएनजी फॉर्म लगानी. कंटिन्यूस में प्रोग्रेसिव भी कहते हैं इसको. सिमिलरली आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी फॉर्मूला याद रखना है कि ये है रूल हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी. तो जो हमारा यहाँ वर्ब है वो हमने हैड बीन में चेंज कर देना. हैड बीन इंक्वायरिंग इनटू द चार्जेस सिंस 2001. क्लियर? सॉरी. So now we do the next one. We come to the next one. Here it is. Gaurav Sharma was coaching the Nepal football team for the last 5 years. Now we will start writing Gaurav Sharma. Was coaching का बन जाएगा had been
coaching the Nepal football team for the last 5 years. ओके बस यहाँ पे वॉज कोचिंग को हमने हैड बीन कोचिंग लगा देना और लास्ट में ये वाला फ्रेज टाइम फ्रेज लग जाएगा. शी वॉज रनिंग अ बुटीक. शी वॉज रनिंग किस में चेंज हो जाएगा? हैड बीन रनिंग. हैड बीन रनिंग a boutique for 2 years. Clear? Now come to the 7th. Ankit was not attending. So was not attending will change into had not been attending. Okay. Ankit had, अब नेगेटिव है ना तो नॉट, फिर बीन लगेगा, बीन अटेंडिंग द स्कूल फॉर ओवर अ वीक. Deepa was talking on phone for 2 hours. Now how we will write this? Deepa had been talking. Had been talking on phone for 2 hours. So all of you complete this at page number 57. After completing the chapter in the book, I will send you the practice exercises from outside. वो मैं खुद अपनी किसी और ग्रामर से भेजूंगी for practice. Now come to this page number 58. Here the rules are written for making affirmative, negative, interrogative. देखिए इधर सिंपल पास्ट हो, अगर जैसे आपका यहाँ पे दिया था ना इन्होंने, ये आपका दिया था प्रेजेंट के लिए, अब यहाँ पे दे रहे हैं सिंपल पास्ट के लिए. ये आप इफ यू वांट यू कैन मेक दिस टेबल इन योर नोटबुक्स. ये आप अपनी नोटबुक्स में बना के रख सकते हैं तो आपको याद रहेगा. ये आप नोटबुक्स में कर सकते हैं अपनी टेबल, ये अपनी नोटबुक में बना लीजिए. वर्ब फॉर्म इधर लिखिए, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. अब आ जाइए अफर्मेटिव में. हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ लुक हियर, सब्जेक्ट आई इन्वाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स टू टी. हियर द सब्जेक्ट इज आई. इन्वाइटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई ये वाली, ये आ गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म. ऑल माई ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स टू टी, ये हमारा आ गया सारा ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. यही चीज अगर हमने नेगेटिव में लानी है तो इन्वाइटेड है, पास्ट टेंस है तो डिडंट लगेगा. दैट्स इट. बाकी सारा आपका सेम है. देखिए आई डिडंट, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, क्योंकि डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आती है. डिड या डिड नॉट जब भी लग गया तो आगे जो आपका वर्ब आएगा उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी. बी वेरी केयरफुल. आई डिडंट इन्वाइट ऑल माई फ्रेंड्स टू टी. अगेन यहाँ डिड लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ, और जब हम इंटेरोगेटिव लगाते हैं तो हमारे वर्ब्स जो हैं पहले आएंगे. डिड आई इन्वाइट ऑल माई फ्रेंड्स टू टी विद अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू डोंट पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड आपका आधा मार्क कट जाएगा. ऐसे ही नेगेटिव में ऐसी कोई भी सेंटेंस आप लिखते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट होगा. मीन्स इफ यू आर नॉट स्टार्टिंग द प्रॉपर नाउन विद द कैपिटल लेटर, और इफ यू आर स्टार्टिंग अ सेंटेंस एंड यू आर नॉट राइटिंग द कैपिटल लेटर, दैट मीन्स योर हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड. आपका आधा नंबर उसमें से कट जाएगा फॉर नॉट यूजिंग द पंक्चुएशन. पास्ट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट वॉज वर, वी की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. नाउ लुक हियर, सब्जेक्ट आई, वॉज लग गया ये, गेटिंग रेडी,
वर्ब की गेट की फोर्थ फॉर्म, गेट 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 गेटिंग, ठीक है। रेडी टू गो टू द पिकनिक, बाकी आपका सारा ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे बस नॉट लग जाएगा, आई वॉज नॉट, क्योंकि सिंपल पास्ट कंटिन्यूस है ना, तो उसमें वॉज, वर, वी की फोर्थ फॉर्म और आईएनजी वाली फॉर्म और रेडी टू गो सेम, सिर्फ नॉट लगा देंगे आप यहाँ। देन अगर आपको क्वेश्चन फॉर्म में डालना है तो वॉज या वर, डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है, वो आई है, तो वॉज लगेगा, और ही शी है, सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट, तो वहां पे वॉज लगेगा। अगर प्लूरल है तो वर लगेगा। वॉज आई गेटिंग रेडी टू गो टू द पिकनिक, ठीक है। नाउ कम टू पास्ट परफेक्ट। इसमें सब्जेक्ट आ गया आपका, दिस इज सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आ गई, और बाकी आ गया आपका ऑब्जेक्ट पार्ट। यू हैड प्लेड द गेम। आई एम वेरी सॉरी, देर इज सम इरिटेशन इन माई थ्रोट, सॉरी फॉर दैट। सब्जेक्ट प्लस हैड तो यहाँ हमने लगाया था, हैड नॉट हमने इसका कॉन्ट्रैक्शन लगा दिया, हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म द एंड गेम सेम। नाउ क्वेश्चन फॉर्म बनाना है तो हैड पहले आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा आपका वर्ब, फिर ये वाला, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड द गेम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट आ गया, हैड बीन लग गया, ये वाला, ये सब्जेक्ट आ गया। रनिंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये हमारा सारा ऑब्जेक्ट आ गया। अगेन नॉट लग जाएगा इसमें, बाकी सारा आपका सेम है क्योंकि ये नेगेटिव है। देन हियर हैड, अब हमने क्वेश्चन फॉर्म बनाना है तो हैड हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हैड, उसके बाद हम सब्जेक्ट डालेंगे, हैड दे बीन रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। क्वेश्चन जब हमने बनाना है तो पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तभी वो क्वेश्चन फॉर्म बनता है। यहाँ पे डिड लगा, यहाँ वॉज लगा, यहाँ हैड लगा, यहाँ हैड लगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव फॉर्म जब हम बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, तभी वो क्वेश्चन फॉर्म देता है। तो आप ये आज बुक कंप्लीट कर लीजिए, फिर टुमारो आई विल सेंड यू। यहाँ हमारा आज ये खत्म हो गया, ठीक है जी, ये हमने आज खत्म कर दिया। अब कल मैं आपको इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भेजूंगी पास्ट की, फाइन, दैट यू विल डू इन योर नोटबुक्स। ये सारा आप काम बुक में कीजिए, एंड अगर आप ये टेबल बनाना चाहते हैं अपनी नोटबुक में बना सकते हैं, बना लीजिए, अच्छा है, आपको याद भी हो जाएगा, ओके।